Hello, dear students. This is your English teacher Benjamin Soren from KV number 2 Itanagar. I welcome you all in this video. Dear students, in the previous class, we had read a beautiful poem, Mr. Nobody, of Unit 6 of your English book, Marigold. In that poem, we had read about a funny little man who is mischievous and he is found in everybody's house. And he remains as quiet as a mouse. And whenever he does a mistake, no one sees him. Yeah? And if anyone asks him, he does not admit his mistake. Yeah? So in that poem, we had read about that funny little man. Dear students, today we are going to do the exercises of this chapter. As you can see here, first one is reading is fun. I will be explaining it. Listen to me carefully and try to understand. Question number 1 is, who is Mr. Nobody? We had read the poem, and if you can recall, you can answer. Who is Mr. Nobody? Mr. Nobody कौन है? So the answer we can write like this. Mr. Nobody is a funny little man. Okay, got it? Mr. Nobody is a funny little man. Question number 2. Has anyone ever seen him? Has anyone ever seen him? क्या किसी ने इसे देखा है? हमने पोएम में पढ़ा था कि इसको किसी ने नहीं देखा है ना, तो उसका आंसर हम क्या लिखेंगे? नो, nobody has ever seen him. No, nobody has ever seen him. Number 3. Is there a Mr. Nobody in your house? So students, in the poem I had discussed that Mr. Nobody, actually it refers to small children, small kids who are found in everybody's house. Yeah? So you are being asked a question here, is there a Mr. Nobody in your house? So dear students, you are a Mr. Nobody yourself. You yourself is Mr. Nobody in your house. Yeah? आप खुद Mr. Nobody हैं अपने घर में. ठीक है? तो इसका आंसर होगा yes, there is a Mr. Nobody in my house. आपको समझ में आ गए होंगे. You have understood, I think so. Let's move further, students. Let's talk. Have you ever done something naughty? Have you ever done something naughty? क्या आपने कभी ऐसा कुछ शरारती काम किया है? ये आपको बताना है. ठीक? What type of we can say some work that you have done which was naughty? You can say like this, I had spilled water on my birthday, I had splashed the cake. Yeah? You can say like this, I had filled air into the balloon and had bursted somewhere else. Yeah? So you can use this type of sentence. इस तरह के वाक्य आप बोल सकते हैं कि आपने कभी कोई शरारत वाला काम किया है. अगर आपको याद है तो आप बता सकते हैं. इसका आंसर हम लोग नहीं लिखेंगे, सिर्फ बोलेंगे. नंबर 2, व्हाट डिड यू डू? आपने क्या किया था? Question number 1, have you ever done something naughty?
अगर किए हैं तो लिखे यस आई हैव डन समथिंग नॉटी। अगर नहीं किए हैं तो लिखेंगे नो आई हैव नॉट डन समथिंग नॉटी। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज व्हाट डिड यू डू, आपने क्या किया था? तो आपने जो किया था वो बताना है। हाँ, अब बोल सकते हैं मैंने बैलून में हवा भर के बैलून को बस्ट कर दिया था किसी के कानों के पास, ये भी नॉटी है एक तरह का। हाँ, शरारत है। मैंने पानी गिरा दिया था, मैंने कुछ ले लिया था, मैंने पेपर फाड़ दिए थे। तो इस तरह के आप बोल सकते हैं। नंबर नेक्स्ट, व्हाट डिड यू से, व्हेन वेर यू कॉट, जब आपको पकड़ा गया, आपसे पूछा गया ये किसने किया, तो आपने क्या कहा था? आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ किसने किया, है ना बच्चों। तो ये लेट्स टॉक, ये सिर्फ बातचीत करने के लिए, इसको लिखना नहीं है। ओके, नेक्स्ट लेट्स शेयर। समटाइम्स यू वांट टू लुक एंड फाइंड थिंग्स फॉर योरसेल्फ, टिक दोज दैट यू डिड, टेल योर फ्रेंड्स। कभी क्या होता है, समटाइम्स कभी कभार, यू वांट टू लुक एंड फाइंड थिंग्स फॉर योरसेल्फ, आप कभी कभार क्या करते हैं, चीज़ों को खोजते हैं अपने घर में। कोई नहीं है घर में तो आप खुद सामान को खोजते हैं कि कहाँ पे ये चीज़ें रखी हुई हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे ही दिए हुए हैं, कुछ थिंग्स, सिचुएशंस दिए हुए हैं, आपको उसमें टिक करना है कि आप क्या ऐसा कभी किए थे। अगर नहीं किए हैं तो क्रॉस कर देना, किए हैं तो टिक लगा देना। ओके, आइए हम लोग करते हैं दिस वन। आई ट्राइड टू सी वाई द क्लॉक टिक्ड, जब क्लॉक टिक टिक की आवाज़ कर रही थी, उसके कांटे जब है मूव कर रहे थे, तो आपने देखने की कोशिश किया, बहुत बार देखा होगा आपने, तो इसको टिक कर दीजिए यस। नेक्स्ट, आई वेंट आउट ऑफ द हाउस एट द नाइट टू सी द स्टार्स, ये भी बहुत बार करते हैं, है ना। रात में वी कैन सी मून्स एंड स्टार्स इन द स्काई एट नाइट। हाँ, सो वी कैन टिक ऑल्सो दिस, I went out of the house at night to see the stars. Okay. Next, I climbed a tree to look into a nest. क्या आप कभी पेड़ पे चढ़े थे कि जहाँ पे नेस्ट है, पक्षी का घोंसला है, और आप वहाँ पे चढ़ करके देख रहे थे? तो ये अगर आपने किया है तो टिक करना, और नहीं किया है तो टिक मत करना। और हमें जहाँ तक लगता है ये आपने नहीं किया होगा, और ऐसा करना भी हमारे लिए खतरा है, डेंजर है, आप गिर सकते हो पेड़ से, आपके हाथ पैर टूट सकते हैं, तो ऐसा कभी नहीं करें। तो इसको क्रॉस ही कर दीजिए, क्रॉस। नेक्स्ट, आई क्लाइम्ड ऑन अ स्टूल टू फाइंड बिस्किट्स। हाँ, दिस वन, हम घर में ऐसे सामानों को खोजते हैं कहाँ पे क्या रखा हुआ है। तो जब घर में कोई नहीं रहता है तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, वो स्टूल लेकर के उसके ऊपर चढ़ करके वो खुद सामान उतारते हैं। तो बच्चों, ऐसा करने के लिए आपको बहुत ही सावधान रहना होगा। यू हैव टू बी केयरफुल वाइल डूइंग लाइक दिस, यू मे स्लिप फ्रॉम द टूल एंड यू कैन इंज्योर योरसेल्फ, आप अपने आप को चोट पहुंचा सकते हैं। तो अगर आपने ये किया है तो टिक करना, और अगर नहीं किया है तो क्रॉस कर देना। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड, क्लियर हो गया है ये। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। इट इज़ से अलाउड, पहले तो जोर से पढ़ना है इसको, से अलाउड। नंबर 1, से अलाउड एंड सर्किल द राइमिंग वर्ड्स, हमें जोर से पढ़ना है और राइमिंग वर्ड्स को सर्किल करना है। राइमिंग वर्ड्स किसको बोलते हैं? जो एक दूसरे से जिसका प्रोनाउंसिएशन मिलता हो, एक जैसा लगता है, जैसे बन रन, है ना, बन रन सन, इस तरह से हम लोग बोलते हैं। बुक टुक लुक, ठीक। तो उस तरह के यहाँ पे हर एक सेंटेंस में कुछ राइमिंग वर्ड्स दिए हुए हैं, तो दोनों राइमिंग वर्ड्स को देखना है कि कौन किसके साथ मेल खाता है, समान लय वाले शब्द इसको बोलते हैं हिंदी में। सो नंबर 1, अ माउस रैन इनटू द हाउस, अ माउस रैन इनटू द हाउस। तो आप समझ ही गए होंगे इसमें क्या है राइमिंग वर्ड्स। क्या माउस रैन के साथ राइम कर रहा है, मिल रहा है, एक जैसा सुनने में लग रहा है? नहीं लग रहा है।
लेकिन कौन सा लग रहा है? माउस हाउस, माउस हाउस। तो ये दोनों वर्ड्स को हम लोग क्या कर लेंगे? सर्किल कर लेंगे ऐसे, माउस हाउस। ठीक। 2 नंबर, I can see the little bee. I can see the little bee. In this sentence, the words that rhyme with each other are C, B, BC या CB, whichever you are, whatever you call, जैसे भी आप बोल सकते हैं। तो ये राइमिंग वर्ड्स हो गए, CB। नंबर 3, that was a fat cat. That was a fat cat. तो इसमें राइमिंग वर्ड्स क्या हो गए? What are the rhyming words in this sentence? देखो दोनों वहीं पे है, fat cat, circle like this, fat cat. Okay, got it? Next, number 4, give me a handkerchief, don't do any mischief. गिव मी अ हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ मतलब होता है रुमाल, ठीक है। डोंट डू एनी मिस्चिफ, मिस्चिफ का मतलब शरारत करना, शरारत, है ना। तो इस सेंटेंस में इन दोनों में राइमिंग वर्ड्स क्या हो जाएंगे? 4 नंबर में हैंडकरचीफ, मिस्चिफ। ठीक, हैंडकरचीफ, मिस्चिफ एक जैसा सुनने में लगते हैं। तो नंबर 1 में हो गया माउस हाउस, नंबर 2 CB, नंबर 3 फैट कैट, नंबर 4 handkerchief, mischief. I hope you have understood it. It is clear to you. Okay, students. So, dear students, these were some exercises that we have discussed today. Okay. So now it's your duty to do these things in copy. You will do all these things in copy except let's talk. इसको छोड़ करके बाकी सब आपको कॉपी में करनी है। लेट्स टॉक वाला आप कॉपी में मत करना, ओके। इसको सिर्फ बोलना था, अपने आप को आपके पास क्या जवाब है ये सिर्फ बताना था, ओके स्टूडेंट्स। आई होप it was clear to you, this video was clear to you and you have understood all the things. If you have any problem you may call me or message me, okay dear students. Hope to see you in the next video. Thank you and have a nice day.